بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق، میں ہوں عظمیٰ چوہدری۔ ناظرین، کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ ایک مربوط ڈائلاگ ہوگا، اس کے بغیر میٹھا میٹھا حبب ہم نہیں ہونے دیں گے۔ پانی کے معاملے کے اوپر بھی سوچنا بنا کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آئیں حل کریں۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ نہیں ہونے دیں گے، پانی ہماری ریڈ لائن، بھارت سنٹاس معاہدے کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہ کرے۔ مذاکرات ہوں گے تو کشمیر سمیت تمام اہم امور پر ہی ہوں گے۔ بھارت کی تھانے داری کا بت پاش ہو چکا، مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ کس طرح چند گھنٹے میں دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا گیا۔ بہادر افواج نے قوم کے غیر متزلزل عزم کے ساتھ مادر وطن کا دفاع کیا۔ قوم کو نہ ڈر سپوتوں اور محسنوں پر فخر ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا پسرور کینٹ میں افسروں اور جوانوں سے تاریخی خطاب۔ ہم تیار ہیں امن کے لیے بھی اور جنگ کے لیے بھی۔ چوائس از یورز۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہیں، کوئی طاقت پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ 24 کروڑ عوام بہادر افواج کے شانہ بشانہ، بھارت کے رات کی تاریکی میں بزدل حملوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور ترقی کا خواہاں، بھارت نے دوبارہ مہم جوئی کا راستہ اختیار کیا تو ہمیں تیار پائے گا۔ جارحیت کی گئی تو ایسا جواب دیں گے کہ سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم۔ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی جو عزت آپ نے بڑھائی اور پاکستان کا جو وقار بڑھایا اپنی لیڈرشپ کی پلاننگ کے تحت، دشمن کا گھمنڈ اور غرور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے خاک میں ملا دیا۔ دنیا پاکستان کی عسکری صلاحیتوں کی معترف، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے گھمنڈ اور غرور کو خاک میں ملا دیا۔ افسر اور جوان ہماری آنکھوں کے تارے، وزیراعظم محمد شہباز شریف کی عسکری قیادت کے عزم اور بلبلے کی تعریف۔ افواج پاکستان نے 9 اور 10 مئی کو صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا۔ ہمارے شاہینوں نے ایسی کاری ضرب لگائی کہ دشمن قوتوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وزیر اعظم پاکستان۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیان مرصوص کی فرنٹ لائنز کا دورہ۔ پسرور چھاونی میں جنگ کے دوران آپریشنل تیاریوں سے متعلق بریفنگ۔ وزیر اعظم کی آپریشن میں شریک افسروں اور جوانوں کی بہادری کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء، آرمی چیف اور ایئر چیف بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کے درمیان رابطہ۔ وزیر اعظم کا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرنے کے عزم کا اعادہ۔ متحدہ عرب امارات ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ جنوبی ایشیا میں حالیہ بحران کے خاتمے کے لیے UAE کے کردار کی ستائش۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی تعریف۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا پاکستان سے دلی محبت کا اظہار، ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان مثالی بھائی چارہ کم اقوام کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ پاکستان کی دانش مندی، صبر و تحمل، مکالمے و مفاہمت کی پالیسیاں قابل تعریف ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف میرے عزیز ترین بھائی کہہ کر مخاطب کیا اور پاکستان ترکیہ دوستی زندہ باد کا نعرہ لگایا، جو ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ صدر رجب طیب اردوان۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का रब्ता। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एंटोनियो गुतेरेस का जंग बंदी का खैर मकदम, कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के वसी तर मफाद में जंग बंदी पर इत्तफाक किया। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। सदर आसिफ अली जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग में जख्मी होने वाले पाक फौज के जवानों और शहरियों की अयादत। जख्मियों की बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की तारीफ। हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। मुल्क की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे, सदर मुमलिकत। आलमी मालियाती जरीदे बैरन की जानिब से इक्तसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी मुआशी करिश्मा करार। पाकिस्तान की तरफ तवज्जो न देने पर सरमायाकार पछताएंगे। 25 करोड़ आबादी वाला ये मुल्क 2 साल में मुआशी तरक्की की राह पर गामजन। 40% महंगाई तकरीबन सिफर पर आ चुकी। पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड्स की कीमत में 2 गुना इजाफा हुआ। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में 3 गुना इजाफा। IMF से कामयाब मुआहिदा, IT बरामदात में इजाफा। पाकिस्तान की तेजी से तरक्की करती मईशत का आगाज। IMF प्रोग्राम की दूसरी किस्त पाकिस्तान को फराहम। 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख डॉलर स्टेट बैंक को मुंतकिल। IMF से मिलने वाली रकम 16 मई को स्टेट बैंक के ज़खायर में जाहिर की जाएगी। स्टेट बैंक बहादुर मुसल्लह अफवाज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाने पर शाहीनों को सलाम। मजमूम प्रोपेगेंडे के जरिए कौम को तकसीम करने की साजिश की गई, जिसे 25 करोड़ अवाम ने मुस्तरद कर दिया। नौजवान नस्ल ने पाक फौज के शाना बशाना दुश्मन के झूठे बयानिए को नाकाम बनाया। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ। मुसल्लह अफवाज का भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब। कौम का सर फख्र से बुलंद। मुल्क व कौम की खातिर जान कुर्बान करने वालों को सलाम। LOC पर रहने वाले बहादुर और निडर हैं। मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की CMH सियालकोट में पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान जख्मी होने वालों की अयादत। जेर इलाज जख्मियों की सेहत के हवाले से आगाह किया। जख्मियों के हौसले बुलंद। बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। रात के अंधेरे में हमलावर दुश्मन को नाकाम बनाया और अपनी धरती का दिफा किया। भारत ने जारहियत की तो इस बार भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्का हक में जख्मी होने वाले पाक अफवाज के जवानों की अयादत। पाक फौज के जख्मी जवानों की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन। कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पलाई दीवार की मानिंद खड़ी है। स्पीकर कौमी असम्बली। सेनेट में भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। सेनेटर साजिद मीर के इंतकाल पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने करारदाद पेश की। सेनेटर ताज हैदर और सेनेटर साजिद मीर के इंतकाल से पैदा होने वाला खला कभी पुर नहीं हो सकेगा। अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. पाकिस्तान और भारत के दरमियान कामयाब तारीखी जंग बंदी हुई। लाखों लोग इस कशीदगी से मुतासर हो सकते थे। उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। आप अच्छे और स्मार्ट लीडर्स हैं, आइए तिजारत करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब।
Recently, with the help of Pakistan, we apprehended the ISIS terrorists responsible for the attack on 13 American service members at Abbey Gate, that horrible, horrible disaster during this Afghanistan withdrawal. You know, that's another thing that we don't even think about so much anymore. 13 died, but 42 were horribly wounded, but hundreds of people died overall. We wouldn't have had Abbey Gate because there wouldn't have been any reason we were getting out, but we were getting out with dignity and with strength and power. But the way they got out was not good. I think it was the most embarrassing moment in the history of our country. अमरीकी सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को जबरदस्त खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे में अमरीका का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान और अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत इत्तेहादी हैं। एबे गेट हमले में दाइश के दहशतगर्द की गिरफ्तारी पाकिस्तान के ताउन से मुमकिन हुई। डोनाल्ड ट्रंप। The treaty is not suspended. It's technically called something in abeyance, is how the Indian government worded it. There is no provision in the treaty to allow for suspension, the way it was drawn up. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. That requires the two countries to want to agree. The World Bank's role is basically that of a facilitator. पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास मुआहिदा बरकरार। भारत मुआहिदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। मुआहिदा ख़त्म करने के लिए दोनों ममालिक की बाहमी रजामंदी ज़रूरी है। फ़रीक़ैन बाहमी बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल तलाश करें। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बेंगा का इंडियन टीवी को इंटरव्यू। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर बच्चों का भी मुसल्लह अफवाद को खिराज तहसीन। राफेल तैयारों के मुआहिदे में मोदी की बदतरीन करप्शन। राफेल तैयारों की नाकामी से मोदी का घमंड चिकनाचूर। राफेल तैयारों की तबाही के बाद एक बार फिर राफेल डील में मोदी की करप्शन और फ्रॉड के चर्चे। मोदी सरकार को राफेल डील में 75 लाख यूरो कमीशन की अदायगी हुई। बीबीसी रिपोर्ट। अमरीकी सदर ट्रंप के सीज फायर बयान को भारत ने खुलेआम मुस्तरद कर दिया। भारतीय लीडरों समेत सहाफियों की अमरीकी सदर के बयान पर शदीद तनकीद। भारत की खारजा पॉलिसी अब वाशिंगटन से चलाई जा रही है। हमारा मीडिया बाहर वालों की बात नहीं मानेगा। भारतीय सियासतदानों और सहाफियों की हर्जा सराई। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का जवाब। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। बीजेपी के वजीर विजय शाह ने भारतीय फौज की मुसलमान तर्जुमान को दहशतगर्दों की बहन कह दिया। कांग्रेस कारकुनों का कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन कहने पर विजय शाह के खिलाफ मुजाहिरा। विजय शाह के नाम की तख्ती पर स्याही फेंक दी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, विजय शाह मुर्दाबाद के नारे। भारत की सिफारती तन्हाई और ऑपरेशन सिंदूर पर आलमी तनकीद। मोदी सरकार की सिफारती और जंगी नाकामी पर न्यू इंडियन एक्सप्रेस का चश्म कुशा आर्टिकल। भारत किसी पड़ोसी मुल्क की हिमायत हासिल न कर सका। रूस और ग्लोबल साउथ ने गैर जानिबदारी इख्तियार की। यूरोपीय यूनियन के साथ भी भारत की सिफारती कशीदगी अयां हो गई। ट्रंप ने भारत की कार्रवाई को जारियत करार दिया। इंडियन एक्सप्रेस। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से छापेमार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। इलाके में खौफ और दहशत का माहौल, मकीन हिरासा, अमलाक की तोड़ फोड़, काले कवानीन के तहत मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार। तनाज़ा जम्मू कश्मीर एक बार फिर जनूबी एशिया का एटमी फ्लैश पॉइंट बन गया। जनूबी एशिया में पायदार अमन तनाज़ा कश्मीर के बावकार हल के बगैर नामुमकिन है। वाइस चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गुलाम अहमद गुलजार।
खलीजी खित्ते के दौरे का दूसरा मरहला। अमरीकी सदर ट्रंप का कतर का दौरा। दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, सरमायाकारी, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीका और कतर के दरमियान तिजारती और दिफाई मुआहिदे पर भी दस्तखत। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, 56 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। खान यूनिस में यूरोपियन हस्पताल से मुत्तसिल इलाके को भी निशाना बनाया गया। रूस, चीन और बरतानिया ने गजा में इमदाद की तकसीम से मुतालिक इसराइल का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। इसराइल से गजा की 2 माह से जारी नाकाबंदी उठाने का मुतालबा। आलमी अदालत इंसाफ गजा में नस्लकुशी पर गौर कर रही है। गजा में इंसानी हुकूक की पामाली हम सब की नाकामी है। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी प्रोग्राम टॉम फ्लेचर की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग। मस्त देखो आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो, दम मस्त देखो आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो। पीएसएल के बकिया 8 मैचेस के टिकटों की तफसीलात का ऐलान। शायकीन 8, 9 और 10 मई के मुलतवी होने वाले मैचेस के टिकट 17, 18 और 19 मई को इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 मई का टिकट रावलपिंडी में डबल हेडर में इस्तेमाल होगा। मुल्तान के मैचेस और रावलपिंडी में क्वालिफाई के टिकट की रकम वापस ली जा सकेगी। पीएसएल में शिरकत के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों का पाकिस्तान आने का ऐलान। रेसी वेंडरडूसन इवेंट के बाकिया मैचेस के लिए दस्तयाब। एलेक्स हेल्स इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। सिकंदर रजा ने भी पीएसएल के बाकिया मैचेस में वापसी की तस्दीक कर दी। और इटालियन ओपन टेनिस, अमेरिका की पैटन स्टर्न्स और इटली की जैस्मीन पाउलेनी सेमीफाइनल्स में पहुंच गईं। क्वार्टर फाइनल्स में यूक्रेन की एलिना स्वितलियाना और रूस की डियाना श्नाइडर्स को शिकस्त। हेडलाइंस के बाद बढ़ेंगे इन्हीं खबरों की डिटेल्स की जाने भी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। जो वीट उगाते हैं, गंदम उगाते हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से काश्तकारों से किए गए एक और वादे की तकमील। गंदम के काश्तकारों के लिए अरबों रुपए से वजीर आला पंजाब गंदम सपोर्ट प्रोग्राम 2025 का आगाज, जिसके तहत किसान कार्ड के हामिल गंदम के 6 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए फी एकड़ 5,000 रुपए की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। ऐसे काश्तकार जिनके पास किसान कार्ड नहीं, वो भी वजीर आला पंजाब गंदम सपोर्ट प्रोग्राम से फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आज ही अप्लाई करें। WSP2025.punjab.gov.pk। किसानों की सहूलत के पेश नजर दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 मई 2025 से बढ़ाकर 31 मई 2025 कर दी गई है। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। और पहली अहम खबर आपको देंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान अमन का दाई है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी न समझा जाए। भारत ने दोबारा मुहिम जोई की तो ऐसा जवाब देंगे कि भारत ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मसरूर कैंट में अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि भारत से कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। नरेंद्र मोदी को पैगाम है कि हम जंग और अमन दोनों के लिए तैयार हैं। तफसील मोहम्मद मज़हर अब्बास से।
वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियाल मरसूस की फ्रंट लाइन के दौरे के पहले मरहले में पसरूर कैंट सियालकोट पहुंचे, जहां उन्होंने दुश्मन के खिलाफ अजीम कामयाबी पर निडर सपूतों को मुबारकबाद पेश की। अपने खिताब में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने अल्लाह के फजल से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के घमंड और गरूर को खाक में मिला दिया। दुनिया में हमारे जो दुश्मन है, मुखालिफ हैं, उनके होश ठिकाने आ गए हैं और जो दोस्त हैं उनके आज हौसले आसमानों से बातें कर रहे हैं। ये वो अचीवमेंट, इट इज कॉल्ड अनथिंकेबल विक्ट्री, और पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान की फौज एक जरी फौज है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पानी हमारी रेड लाइन है। भारत पर वाजे करते हैं कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी का तस्वुर भी न करें। सुन मेरी बात कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, इसके ऊपर कभी सोचना भी ना। पानी का जो हमारा हक है वो ये कड़ियल, ये कौम के सजीले जवान, वो अपनी बहादुरी और जुर्रत से और कुर्बानियों से वो पानी का हक पूरी तरह उसको रिट्रेट करेंगे। वजीर आजम ने वाजे किया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की चाहता है। भारत हमें भाषण न दे, पाकिस्तान अमन और जंग दोनों के लिए तैयार है। खित्ते में तरक्की और खुशहाली की दाई है। मैं ये भी कहूंगा कि टॉक फॉर ट्रेड बिल्कुल, लेकिन नॉट इन आइसोलेशन, एक मजबूत डायलॉग होगा। उसके बगैर मीठा मीठा हबब हम नहीं होने देंगे। कश्मीर का जो एक डिस्प्यूटेड जो इशू है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आए हल करें। आओ इस खित्ते को मिलकर सच्चे दिल के साथ इसको अमन का गहवारा बनाएं, आग न लगाएं, आओ आग को खत्म करें। हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी। चॉइस इज योर्स। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दी की आड़ में मुहिम जोई करने वाला भारत 1971 समझौता एक्सप्रेस समेत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस रहा है। मिस्टर मोदी 1971 में मुक्ति बानी को किसने ट्रेन किया था और किसने ट्रेन करके हिंदुस्तान में उनको उस पार भिजवाया और बगावत पर उकसाया। समझौता ट्रेन के ऊपर अटैक किसने किया था? मिस्टर मोदी। ये पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। बलूचिस्तान में अभी हालिया हफ्तों में जो ट्रेन हाईजैकिंग का अफसोसनाक तरीन वाकया हुआ, उसमें BLA, TTP और उसके ताने बाने आपके साथ मिलते हैं। कलभूषण कौन है? वो कहां से बलूचिस्तान में नमूदार हुआ? वो किसकी जासूसी कर रहा था? इसलिए हमें ये भाषण मत दो। हम तो आज ये फौज, पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ नबर्द आजमा है। ये हमारी बका की जंग है। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने एहतियात के साथ भरपूर जवाब दिया। हमारे नीलम झेलम को डैमेज करने की कोशिश की, वो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, मगर बाखुदा अगर आप उसको ज्यादा डैमेज करते तो हम तुम्हारे बगलियार और सारे डैम को तबाह बर्बाद कर देते। ये कड़ियल जवान, ये एयरफोर्स के हमारे शाहीन, इनमें इतनी ताकत है, लेकिन हमने इंतहाई सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लिया। यही तो लेसन है। वजीर आजम ने कहा कि मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने अस्करी महारत, हिम्मत और जवामर्दी से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे शाहीनों ने दुश्मन पर जो कारी जरब लगाई, ये मामूली कारनामा नहीं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की बदौलत मादरे वतन का बहादुरी से दिफा किया और दुश्मन की नापाक जारहियत को फैसला कुन जवाब दिया। वज़ीर आज़म के पसरूर कैंट सियालकोट के दौरे के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहरुख शफी। पाकिस्तान
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ और एयर चीफ के हमरा पसरूर कैंट सियालकोट का दौरा किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म को जंग के इनेकाद और कोर की मौजूदा ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। फ्रंट लाइन पर अफसरान और बहादुर जवानों से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने इनके बुलंद हौसले, गैर मामूली पेशा वराना महारत और गैर मुतज़लज़ल तैयारी की तारीफ की। इस मौका पर ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के मार्काए हक में मुसल्लह अफवाज की शानदार कारकर्दगी की तारीफ करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीख हमेशा ये लिखेगी कि किस तरह चंद घंटों में पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों ने भारत की झारियत को बेमिसाल दुरुस्तगी और अज़्म के साथ खत्म किया। किस तरीके से राफेल को फेल कर दिया गया, किस तरह हमारे शाहीनों ने झपट झपट कर तुम्हारे तैयारों को तबाह किया, किस तरह बड़ी फौज ने आपके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तबाह किया, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को अपने बहादुर बेटों पर बेहद फख्र है, वो कौम के ताज हैं। उन्होंने कहा निहत्ते शहरियों के खिलाफ वाज़े जहारियत जिसके नतीजे में बच्चों, खवातीन और बुजुर्ग शहरी शहीद हुए, इन्हें दहशतगर्द करार देना शर्मनाक है और तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन, इक़दार और इखलाकियात के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि हमारी गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारत ने जानबूझकर इस रास्ते से गुरेज किया क्योंकि इसके पास साबित करने के लिए कुछ नहीं था और झूठे बहाने, गुरूर, खुद पसंदी और अना की बुनियाद पर झारियत शुरू की, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह इसे बहुत मुनासिब जवाब मिला। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा हमारे शोहदा हमेशा हमारा फख्र रहे हैं और कौम हमेशा इनकी मकरूज रहेगी। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू ज़ैबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में हालिया बहरान को कम करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की सिफारती कोशिशों और तामीरी किरदार पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन का ख़्वाह है और इसी जज्बे के तहत भारत के साथ जंगबंदी पर रजामंदी ज़ाहिर की है। उन्होंने इफ़ाम व तफ़हीम की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया, लेकिन साथ ही पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के भरपूर अज़्म का इज़हार किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे को कभी चैलेंज नहीं होने देगा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान करीबी और बिरादराना ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि गुज़श्ता एक साल के दौरान दो तरफ़ा ताउन, मईशत और सरमायाकारी के शोबों में मज़ीद बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात को बाहमी फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलने के अज़्म का इयादा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए जंगबंदी का खैर मक़दम किया। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की बहाली की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया के कशीदा सूरत हाल को कम करने के लिए सेक्रेटरी जनरल की सफारती कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल की सफारतकारी और राब्ते अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों और मकासद के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ जनूबी एशिया में अमन के हवाले से उनकी दिलचस्पी का मज़हर हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के वसी तर मफाद में जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़ किया है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करते हुए जनूबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए अपने मजबूत अज़्म का इयादा किया। उन्होंने भारत की जानिब से दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात और जारहियत की मज़म्मत की और इसे एक ख़तरनाक मिसाल करार देते हुए कहा कि आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने भारतीय क़यादत के मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर भी तशवीश का इज़हार किया जो कि इलाकाई अमन के लिए ख़तरा हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने के लिए नागुज़ीर है और सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया कि वो इसके मुनसिफाना हल में अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल ने जंग बंदी का खैर मक़दम करते हुए शहरियों की जानों की ज़िया पर ताज़ियत का इज़हार किया। उन्होंने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने के लिए दोनों फरीकों के साथ राब्ते जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया।
और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जमहूरिया आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोफ ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत पर सदर इल्हाम अलियौफ और आज़रबाईजान के बिरादर अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये दोनों ममालिक के दरमियान पायदार दोस्ती का आकाश है। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज को दिल की गहराइयों से सराहते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम तारीख़ी फ़तह पर अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और इसी जज्बे के तहत भारत के साथ जंगबंदी पर आमादगी ज़ाहिर की है। ताहम पाकिस्तान मुस्तक़बिल में किसी भी जारियत का सामना करने के लिए अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तैयार है। पाकिस्तान आज़रबाईजान ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताउन के मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि सदर अलियौफ गुज़श्ता जुलाई में पाकिस्तान का तारीख़ी दौरा मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन का एक अहम संग मील है। फरवरी 2025 में अपने दौरा बाकू का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने बिरादराना ताल्लुकात को बाहमी तौर पर एक फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने की पाकिस्तान की मजबूत ख्वाहिश का इयादा किया। खिज़र फरहादोफ ने वज़ीर आज़म और पूरी पाकिस्तानी कौम को तहे दिल से मुबारकबाद दी। उन्होंने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की और कहा कि सदर अलियौफ दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म को दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान मुश्तरका मफाद के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए अपने मुकम्मल अज़्म का यकीन दिलाया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खैर मकदमी बयान पर पाकिस्तान से दिली मोहब्बत का इजहार किया है। तुर्क सदर ने सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मेरे अजीज़ तरीन भाई कहकर मुखातिब किया और पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लगाया। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो भाईचारा है वो बहुत कम अक़वाम को नसीब होता है। तुर्क सदर का कहना था कि तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान की दानिशमंदी, सब्र व तहम्मुल, मुकालमे और मुफाहमत की पॉलिसीज़ को सराहते हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर की जानिब से काबीना इजलास में पाकिस्तान की वाज़ेह हिमायत को सराहते हुए इसका खैर मकदम किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने CMH रावलपिंडी का दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीय जारियत में जख्मी होने वाले पाक फौज के जवानों और शहरियों की अयादत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आला हुकाम भी सदर मुमलिकत के हमराह थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने जख्मी जवानों से फ़र्दन मुलाकात की और उनकी बहादुरी और हुब्बुल वतनी को सराहा। इस मौके पर सदर मुमलिकत का कहना था कि हमें अपने निडर सपूतों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। पूरी कौम बेमिसाल कुर्बानियों पर अपने सिपाहियों को सलाम पेश करती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जारहियत का डट कर मुकाबला किया। भारत का जारहाना रवैया इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। सदर मुमलिकत ने कहा कि हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद ख़तरात लाहिक है। मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। सदर मुमलिकत ने वतन अजीज़ की खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने भारतीय जारहियत के नतीजे में मुसल्लह अफ़वाज के 2 ज़ख्मी जवानों हवालदार मोहम्मद नवीद शहजाद और सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज को उनकी शहादत पर खिराजे अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमारे शोहदा हमारा असासा हैं, उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना की एहसानमंद रहेगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने शोहदा के लिए बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने दफ्तर ख़ारजा के अफसरों से मुलाकात की और हालिया बहरान के दौरान कौम के लिए उनकी शानदार खिदमत को सराहा। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को मौसर तरीके से दुनिया तक पहुँचाने के लिए उनकी पेशा वराना महारत, अज़्म और अनथक कोशिशों की तारीफ़ की। उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की कि वो कौम की खिदमत में अपने जोश व जज्बे को बरकरार रखें। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं कि पाकिस्तानी कौम ने अपनी अफवाज के साथ मिलकर वसाइल में कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी है और साबित किया है कि हम अपने वतन का दिफा करना बखूबी जानते हैं। वो फैसलाबाद में तलबा और तालिबात को होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रही हैं। इसी तकरीब के हवाले से और उनके खिताब के हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम।
GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है। पूरी कौम मुल्क का भरपूर दिफा करने पर मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत को सलाम पेश करती है। जिस तरह हमारे अफवाज पाकिस्तान ने ये जंग लड़ी और कौम ने जिस तरह उनको सपोर्ट किया, एक कौम बन के ये जंग लड़ी और उनके शाना बशाना खड़ी रही, मैं पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा तारीखी और जो मैं कहती हूँ कि मुसरत भरा लम्हा और कोई नहीं हो सकता। अगर हम एक कौम ना होते, अगर फौजी और सियासी क़यादत पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद ना होती तो ये कामयाबी हमें कभी नहीं मिलती। अल्लाह ताला का शुक्र है कि सबकी नीयत ये थी कि पाकिस्तान सर बुलंद हो और अल्लाह ताला ने तारीखी फतह हमें अता की माशाल्लाह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि एक जमात ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करके मुल्क को तकसीम करने की साजिश की, लेकिन नौजवानों ने नफरत और इंतशार की सियासत को रद्द कर दिया। आज मुझे नवाज शरीफ साहब का वो जुमला बहुत याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले लोग हैं। आपके जोशो जज्बे ने बता दिया कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 10 मई वाले लोग हैं, हम 28 मई वाले लोग हैं। 28 मई 1998 को हमने वो मुकाबला 5-6 से जीता था और 10 मई 2025 को हमने वो मुकाबला 0-6 से जीता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर 90 अरब रुपए के वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर आला ने तलबा और तालिबात में होनहार स्कॉलरशिप चेक और लैपटॉप तकसीम किए। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है और दुनिया के नक्शे पर छा रहा है। आलमी मालियाती जरीदे की जानिब से इक्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी मुआशी करिश्मा करार। 25 करोड़ 50 लाख आबादी वाला ये मुल्क गुज़श्ता 2 साल में मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका। IMF से कामयाब मुआहिदा, IT बरामदात में इजाफे समेत मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी पाकिस्तान की तेजी से तरक्की करती मईशत की अक्कास है। तफसील अनीस अवान से। सफ़े अव्वल के आलमी मालियाती जरीदे बैरन ने इक्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी को माशी करिश्मा करार दिया है। बैरन की रिपोर्ट के मुताबिक 25 करोड़ 50 लाख आबादी का मुल्क गुज़श्ता 2 साल में भरपूर मुआशी तरक्की कर चुका है। सालाना 40% महंगाई अब तकरीबन 0 हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड्स की कीमत भी दुगनी हो गई है। कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 3 गुना हो चुका है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के 7 अरब डॉलर्स के कर्ज प्रोग्राम के तहत 2 अरब डॉलर से जायद की रकम पाकिस्तान को जारी की जा चुकी है। आलमी मुआशी माहिरीन का कहना है कि भारत से तनाज़ा पाकिस्तान की मुआशी बहाली मुतासिर नहीं करेगा। सबका ख्याल था कि श्रीलंका की तरह पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में काबीना ने सख्त मुआशी फैसले किए और मईशत को मुस्तहकम किया। बैरन का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ तवज्जो न दी तो शायद सरमायाकार बाद में पछताएंगे। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने CMH रावलपिंडी का दौरा किया और मार्का हक में जख्मी होने वाले पाक अफवाज के जवानों की अयादत की। सरदार अयाज सादिक ने पाक फौज के जख्मी जवानों की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने हर महाज पर दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर किया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज के कमांडरों की हिम्मत और हुब्बुल वतनी लाजवाल है और वो वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। सियालकोट में CMH के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज ने कौम के साथ मिलकर मुल्क की सालमियत का भरपूर दिफा किया। अगर भारत ने दोबारा जाहरियत की कोशिश की तो उसको एक बार फिर मुंह की खाना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी है। इससे पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने CMH सियालकोट का दौरा किया और भारतीय जारहियत के नतीजे में जख्मी होने वाले मुसल्लह अफवाज के जवानों की अयादत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी होने वाले मेहनतकश तौकीर अब्बास की अयादत की और इसके बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला ने तौकीर अब्बास को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला ने जख्मी तौकीर अब्बास की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत हमें फतह नसीब की। शहीद अली हैदर और 2 जख्मी कज़न तौकीर अब्बास और मंजूर फैसल पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर चिप्स और बर्गर फरोख्त करके खानदान का पेट पालते थे।
वफाकी वजीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम ने रावलाकोट में कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल का दौरा किया और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी होने वाले अफराद की इयादत की। इस मौके पर उन्होंने मुतासरीन को फूलों के गुलदस्ते पेश किए और दिली हमदर्दी का इजहार किया। बाद में अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि कंट्रोल लाइन के अवाम हमारे असल हीरो हैं जो सीना तान कर दुश्मन का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं कि मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आज़ाद कश्मीर की तहसील हजीरा में मारका हक की तकरीब से खिताब में अमीर मकाम ने कहा कि मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं और आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की बड़ी फतह। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बेमिसाल कुर्बानियों को दुनिया के सामने तस्लीम किया, जबकि मोदी की नाकिस पॉलिसीज पर भारत के हर तबके से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। तफसील सैयद जहांगीर अली से। सऊदी अरब के शहर रियाज में सऊदी यूएस इन्वेस्टमेंट की तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे में अमरीका का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान हमारा काबिल इत्तेमाद इत्तेहादी है। ट्रंप का कहना था कि एबीगेट हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी सिर्फ पाकिस्तान के भरपूर ताउन से मुमकिन हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका अब दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद बन चुके हैं। Leader, you read about that just recently. With the help of Pakistan, we apprehended the ISIS terrorists responsible for the attack on 13 American service members at Abbey Gate, that horrible, horrible disaster. दूसरी जानिब भारत में भी सच की गूंज सुनाई देने लगी है। साबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज ने खुलकर कहा है कि जंग मसले का हल नहीं बल्कि तबाही का रास्ता है। जंग कोई फिल्मी सीन नहीं, इसके जख्म नस्लों तक महसूस किए जाते हैं। उन्होंने भारतीय हुकूमत को खबरदार किया कि जंग के असरात सिर्फ फौजियों तक महदूद नहीं रहते, ये मासूम शहरियों, बच्चों और आने वाली नस्लों पर नफसियाती असरात छोड़ते हैं। It is not your Bollywood movie. It is very serious business, and war or violence should be the last thing that we should resort to, and which is why our Prime Minister had said that this is not an era of war. Although wars will be forced upon us, unwise people, but war should not be what you cheer for. Again, people are asking that why did we not go for all-out war? But as a military man, if ordered, I will go to war. But that will not be my first choice. दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये बयानात पाकिस्तान के मौकिफ की आलमी सतह पर फतह और भारत के मनफी प्रोपेगेंडे की खुली शिकस्त है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ट्रंप के बयान से वाज़ेह होता है कि भारत दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, जबकि पाकिस्तान इसके खिलाफ डट कर खड़ा है। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। पाकिस्तान भारत कशीदगी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंगबंदी के ऐलान को भारत ने मुस्तरद कर दिया है। भारतीय सियासतदानों, सहाफियों और दिफाई माहिरीन ने मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं सिद्रा फातिमा की ये रिपोर्ट। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी के बाद भारत में मोदी सरकार सियासी और नफसियाती दबाव का शिकार है और इसके सवाल की शुरुआत वाज़ेह हो चुकी है। 10 मई को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया, जिस पर भारत में सियासी भूचाल आ गया। भारतीय क़यादत और मीडिया ने न सिर्फ इस ऐलान को मुस्तरद किया बल्कि मोदी हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय सियासतदान प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि अमरीका ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया और भारत को खबर तक न हुई, जबकि ट्रंप ने भारत की कौमी सलामती को मजाक बना दिया। They forced a ceasefire between India and Pakistan. What we hear from the Ministry of Defence briefing which would take place is that India had an upper hand in all सेक्टर्स ऑफ वॉर। कांग्रेसी रहनुमा पवन खेड़ा का कहना था कि भारत की खारजा पॉलिसी अब वॉशिंगटन से चल रही है और मोदी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। Very unprecedented that we get to know from the American president that there's been a ceasefire. The country needs to know and deserves to know what has India achieved and what has India lost over the last 5-7 days. भारतीय सहाफी अर्नाब गोस्वामी ने कहा कि ट्रंप को जंगबंदी जैसे हसास मामले पर बात करने का कोई इख्तियार नहीं, खास तौर पर जब भारत ने इस पर इत्तफाक ही नहीं किया। I strongly object to the fact that the US president is saying that he has sorted out the conversation between two countries. This is typical Trump overreach at a time when he does not have a mandate to do so. Republic will go
by what our Prime Minister says. Republic will go by what the Foreign Secretary of India says and what the Indian forces says. It is wrong for Donald Trump to go out and make an announcement. दिफाई माहिरीन के मुताबिक मोदी ने पसे पर्दा सीज फायर की अपील की थी, लेकिन जब ऐलान वाशिंगटन से आया तो मोदी ने खामोशी इख्तियार कर ली, जो इस बात का सबूत है कि फैसला दिल्ली में नहीं बल्कि अमेरिका में हुआ। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि मोदी की हालिया तकरीर में शिकस्त, खौफ और इज़्तिराब नुमाया था, जबकि सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि दुनिया इस बात की गवाही दे चुकी है कि पाकिस्तान से जंग पर भारत को जिल्लत का सामना करना पड़ा है और भारतीय अवाम और अपोजिशन दोनों नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो चुकी है। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मार्का बुनियानुल मरसूस दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की आलमी फतह। अमरीकी सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। 13 मई 2025 को सऊदी अरब के शहर रियाद में सऊदी यूएस इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के हक में अहम बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे में अमरीका का भरपूर साथ दिया है। अमरीकी अफवाज ने 20 जनवरी से लेकर अब तक इराक, शाम और सोमालिया में 83 दहशतगर्दों का सफाया किया है। एबे गेट हमले में दाइश के दहशतगर्द की गिरफ्तारी पाकिस्तान के ताउन से मुमकिन हुई है। There is, and you saw that when I knocked out ISIS in 3 weeks. People said it would take 4 years, 5 years. I did it. We did it in 3 weeks. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे में बड़ा किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहादी बन चुके हैं। स्काई न्यूज़ के मुताबिक ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ट्रंप के बयान ने वाज़े कर दिया कि भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है, जबकि पाकिस्तान इसके खिलाफ खड़ा है। ट्रंप के बयान से बैनुल अक़वामी सतह पर यह बात वाज़े हो गई है कि पाकिस्तान अमन और आलमी तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी हैसियत रखता है। आलमी सतह पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर ताकत के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप के हालिया बयानात ने पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से हलचल पैदा कर दी है। भारत की जानिब से ये कहना कि पाकिस्तान सालसी के लिए अमरीकी सदर के पास गया गलत साबित हो चुका है। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन भी कह चुके हैं कि सालसी के लिए भारत ने रब्ता किया। भारत के सीनियर सहाफ़ी सिद्धार्थ ने इंकशाफ किया है कि सालसी के लिए मोदी ने अमरीका से रब्ता किया। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब में एक तकरीब के दौरान कहा कि शायद हम उन्हें थोड़ा सा इकट्ठा भी कर सकते हैं, जहां वो बाहर जाकर एक साथ अच्छा खाना खाएं। क्या ये अच्छा नहीं होगा? ये बयान जो बज़ाहिर मज़ाहिया था, लेकिन इसके सियासी मुज़मरात पर सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस शुरू हो चुकी है। भारतीय सहाफ़ी सुशांत सिंह ने इस पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत पाकिस्तान पर बार बार दिए जाने वाले बयानात को मोदी को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारतीय मीडिया ट्रंप के बयानात को बेअसर करने की कोशिश करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें पजीराई मिली है। अमरीकी सदर ने यूएस सऊदी सरमायाकारी फोरम में ये दावा दोहराया कि अमरीका ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौजी कशीदगी में कमी और जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ने कहा कि दोनों जौहरी ताकतों भारत और पाकिस्तान को तिजारती मुराद की पेशकश की है कि अगर आप लड़ाई रोक दें तो हम आपसे तिजारत करेंगे, अगर आप लड़ाई नहीं रोकेंगे तो तिजारत नहीं होगी। ये पहला मौका नहीं जब ट्रंप ने भारत पाकिस्तान ताल्लुकात में सालसी या किरदार अदा करने का दावा किया हो। ट्रंप मासी में भी इसी नौयत के बयानात दे रहे हैं जिन्हें भारत ने गैर ज़रूरी मुदाखलत करार दिया। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक ट्रंप का बयान न सिर्फ सफारती लिहाज से भारत के लिए नापसंदीदा हो सकता है, बल्कि दाखिली सियासी सतह पर भी इसे चैलेंजेस का सामना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करते चलें, जहाँ भारतीय फौज की तरफ से बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों का सिलसिला जारी है, जिससे इलाके में बदस्तूर खौफ और दहशत का माहौल है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों घरों पर छापे मारे, अमलाक की तोड़ फोड़ की, सामान जब्त किया और मुतादिद नौजवानों को काले कवानीन के तहत गिरफ्तार किया। छापों के दौरान खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को हिरासा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ हालिया जंग में भारत की जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुल्की दुश्मनी पर मबनी बयानात पोस्ट करने के झूठे इल्जामात पर नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए।
کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا ہے کہ حالیہ پاک بھارت جنگ سے تنازع جموں کشمیر ایک بار پھر جنوبی ایشیا کا ایٹمی فلیش پوائنٹ بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تنازع نے خطے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن تنازع کشمیر کے باوقار حل کے بغیر ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک بھارت جنگ بندی خوش آئند ہے، تاہم بھارت کا جنگی جنون اور جارحانہ طرز عمل خطے کے لاکھوں افراد کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ غلام احمد گلزار نے کہا کہ کشمیر کوئی علاقائی تنازع نہیں بلکہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کا سوال ہے، جسے اقوام متحدہ کی 1 درجن سے زائد قراردادوں میں تسلیم کیا گیا ہے۔ سیالکوٹ کے اسکول کے طلبہ نے مارکہ حق کی فتح منانے کے لیے قومی پرچم لہرایا۔ طلبہ نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک اور مسلح افواج پر فخر ہے۔ اس موقع پر اساتذہ نے کہا کہ بحیثیت قوم متحد اور مضبوط رہنے کے لیے اپنی فتوحات کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ طلبہ نے ملک سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو 48، جیکب آباد 47، سبی، تربت لسپیلا، سکھر، روہڑی، رحیم یار خان، مونجو داڑو، لاڑکان اور بہاول نگر میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، کھیل میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پی ایس ایل کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کے بقیہ 8 میچز کے ٹکٹوں کی تفصیلات کا اعلان کر دیا۔ وہ شائقین جنہوں نے 8، 9 اور 10 کے میچز کے ٹکٹ خریدے تھے، اب وہ انہی ٹکٹوں کو بالترتیب 17، 18 اور 19 مئی کے میچز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 18 مئی کو ڈبل ہیڈر ڈے ہونے کی وجہ سے دونوں میچوں میں شرکت کے لیے 9 مئی کا ٹکٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جن شائقین نے ایلیمنیٹر 1، 2 اور فائنل کے ٹکٹ خریدے ہیں، وہ متعلقہ میچز کی نئی اعلان کردہ تاریخوں کے مطابق انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ شائقین 5 اور 10 مئی کو ملتان میں ہونے والے مقابلوں اور راولپنڈی میں کوالیفائر کا مکمل ری فنڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ میں شرکت کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں نے پاکستان آنے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد یونائٹڈ کا کہنا ہے کہ ریسی ون ڈوسن پی ایس ایل کے بقیہ میچز کے لیے دستیاب ہوں گے، جبکہ ایلیکس ہیلز بھی یونائٹڈ کا دوبارہ حصہ بن گئے۔ دفاعی چیمپئن ٹیم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ریسی ون ڈوسن کو پی ایس ایل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایلیکس ہیلز نے کہا کہ یونائٹڈ میرے دل کے بہت قریب ہے، یونائٹڈ کے شائقین اور مینجمنٹ نے ہمیشہ سپورٹ کیا، دوبارہ ٹیم کو جوائن کرنے کے لیے بے تاب ہوں۔ لاہور قلندرز کے زمبابوین کھلاڑی سکندر رضا نے بھی بقیہ میچز میں شرکت کا اعلان کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر سکندر رضا نے پی ایس ایل کے لیے اپنی دستیابی کی تصدیق کر دی۔ ناظرین، اسپیشل اولمپکس پاکستان کے زیر اہتمام اسلام آباد کی نمل یونیورسٹی میں کھلاڑیوں کے ٹرائلز منعقد ہوئے۔ ٹرائلز میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف اسکولوں سے تعلق رکھنے والے آٹزم اور ذہنی معذوری کا شکار بچوں نے بھرپور جوش و خروش سے شرکت کی۔ ٹرائلز میں بوچی، ٹیبل ٹینس اور پاور لفٹنگ شامل تھے، جن کا مقصد ذہنی معذوری کے شکار بچوں اور بڑوں کو کھیلوں کے ذریعے بااختیار بنانا ہے۔ بوچی ایک قدیم کھیل ہے جو ذہنی معذوری کے شکار افراد کے لیے اہم مانا جاتا ہے۔ اسپیشل اولمپکس دنیا کی سب سے بڑی سپورٹس تنظیم ہے جو اس شعبے میں سال بھر تربیت اور مقابلے فراہم کرتی ہے۔ اس وقت یہ تنظیم 170 سے زائد ممالک میں 53 لاکھ سے زائد ایتھلیٹس اور یونیفائیڈ پارٹنرز کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق اور عظما چودھری کو اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت۔ پی ٹی وی نیوز پر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔